Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 12th history, chapter theme 9, Kings and Chronicles. Kings and Chronicles. My dear, today in this chapter we will try to understand about the Mughal Chronicles and their importance. If you will read this chapter, the whole chapter, then you will find that the different Mughal chronicles which was written in different Mughal emperor regime, their importance is very unique and gives us many more information about the contemporary society, religion, cultural activities, political system, court, plus type of others. My dear, the Kings and Chronicles, the Mughal court from 16th and 17th centuries. The introduction session, the introductions of this chapter, which is given here, is that the rulers of the Mughal Empire saw themselves as appointed by divine will to rule over a large and the heterogeneous the populace. Although this grand vision was often circumscribed by the actual political circumstances, it remained important. One way of transmitting the vision was through the writing of dynasties, histories. The Mughal king commissioned court historian to write account. These accounts recorded the event of the emperor's time. In addition, their writers collected vast amount of information from the regions of the subcontinent to help the rulers govern their domain. Modern historians, written in English, have termed this genre of text chronicles as the present continuous chronological record of event. The chronicles are an indispensable source for any scholar wishing to write a history of the Mughals. At one level, they were repository of the factual information about the institutions of the Mughal state. The painstakingly collected and classified by the individuals closely connected with the court. At the same time, these texts were intended as conveyors of the meaning that the Mughal rulers sought to impose on their domains. They therefore give us glimpse into how the imperial ideologies were created and disseminated. This chapter will look at the working of this rich and the fascinating dimension of the Mughal Empire. This is the introduction part, in which author want to clarify, want to inform you
व्हाट वाज द रोल ऑफ क्रॉनिकल्स, क्या इनका रोल था? कहता है मुगल साम्राज्य, जो मुगल एम्पायर थे, मुगल एम्पायर के शासक स्वयं को एक विशाल और विजातीय जनता पर, जो एक एथनिक ग्रुप से नहीं थे, मतलब डिफरेंट कम्युनिटी के थे, प्रशासन के लिए नियुक्त मानते थे। मतलब मुगल जो शासक थे वो ऐसा मानते थे कि हम विभिन्न संप्रदायों, विभिन्न जातियों, धर्मों के लोगों पर शासन करते हैं। हालांकि वास्तविकता में राजनैतिक परिस्थितियां इस भव्य दृष्टिकोण से सीमाबद्ध कर देती थी, मतलब इस चीज को एक प्रॉपर फॉर्म में कैटेगराइज कर देती थी। इस दृष्टि से प्रचार प्रसार का एक तरीका राजवंशी इतिहास लिखना और लिखवाना था। मुगल राजाओं ने दरबारी इतिहासकारों को विवरणों के लेखन का कार्य सौंपा। इन क्रॉनिकल्स में बादशाह के समय की घटनाओं का लेखा जोखा दिया जा गया। इसके अतिरिक्त इनके लेखकों ने शासकों को अपने क्षेत्र के शासन में मदद के लिए उपमहाद्वीप के अन्य क्षेत्रों से ढेरों जानकारियां इकट्ठी की। माय डियर, आई होप यू आर गेटिंग अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। आई वांट टू टेल यू दैट द मुगल्स who ruled India during 16th 17th century, they felt that कि in India their own community, their own peoples, their own religion, that was not only live, but also the other religious community group, they were part of the Mughal Empire. So that's why it was very important for the Mughal emperor that they propagate their policy, propagate their rules. They wrote their chronicles. उन्होंने क्या किया? लिखवाया। उन्होंने उन क्रॉनिकल्स को लिखवाने का प्रयास किया जिससे वो अपनी पॉलिसीज को लोगों में फैला सके, लोगों में अपने विचारों को, अपने नीतियों को आसानी से भेजने के लिए उन लोगों ने इसका काम किया। अंग्रेजी में लिखने वाले जो आधुनिक इतिहासकार हैं, इन लोगों ने इन क्रॉनिकल्स का मूल पाठ, जो इतिहास है, क्रॉनिकल्स के नाम से किया है। ये इतिवृत्त, ये क्रॉनिकल्स घटनाओं का एक सिस्टमेटिक, एक क्रोनोलॉजिकल डिटेल्स देते हैं। मुगलों का इतिहास लिखने के इच्छुक किसी भी विद्वान के लिए, किसी भी स्कॉलर के लिए ये क्रॉनिकल्स इम्पॉर्टेंट सोर्स के रूप में काउंट किए जाते हैं। एक और तो ये क्रॉनिकल्स मुगल राज की संस्थाओं के बारे में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देते हैं, जिन्हें दरबार में घनिष्ठ रूप से जुड़े व्यक्तियों द्वारा काफ़ी मेहनत से एकत्रित कर लिखा गया था, वर्गीकृत किया गया था, बांटा गया था। दूसरी ओर इन मूल जो क्रॉनिकल्स हैं का जो उद्देश्य है, इन आशयों को भी संप्रेषित करना था जिन्हें मुगल शासक अपने क्षेत्र में लागू करना चाहते थे। अतः ये इतिवृत्त, अतः ये क्रॉनिकल हमें इस बात की एक झलक देते हैं कि कैसे शाही विचारधाराएं रची तथा प्रचारित की जाती थी। यह अध्याय, यह चैप्टर मुगल साम्राज्य के इस समृद्ध और लुभावने आयाम की कार्य प्रणाली पर प्रकाश डालेगा। ये चैप्टर मुगल क्रॉनिकल्स की इंपॉर्टेंस को बताने का प्रयास करेगा। अगर आप पहला टॉपिक देखेंगे इस चैप्टर का, तो पहला ही टॉपिक है द मुगल्स एंड देयर एम्पायर। आई होप you are getting understand that what I am saying. My dear, the chronicles were very important. Chronicles were the very important source to understand the Mughal history. Mughal chronicles not only gives information about the factual information about the court, but also it provides us the political condition, social condition, the cultural activities, the court activities, such type of others. So if any scholar want to understand or want to write about the history of Mughal, it would be very helpful for them if they use these chronicles, which was written by
various scholars in the Mughal era. This chapter focuses on these all points, the importance of the Mughal Chronicles, how it was built, how it was ruled, सब चीज़ें. ये चैप्टर आपको इन सारी चीज़ों की जानकारी विस्तृत रूप में देगा. माय डियर, आप आई होप इस चीज़ को समझ रहे होंगे. अब तो पहला टॉपिक है इसका, द मुगल्स एंड देयर एम्पायर. द मुगल्स एंड देयर एम्पायर. The Mughals and their empire. The topic is very important. The name Mughals derived from Mongols. First, we will discuss about the Mughals. मुगल किस शब्द से बना हुआ है? पहला मंगोल्स, स्पेलिंग देख लीजिए. कहता है मुगल्स derived from the word Mongols. मंगोल. सेकेंड कहता है रूपयार्ड कीपिंग स्टोरी मोगली. आपने सुनी होगी कहानी. पहले देखिए पैराग्राफ कहता है द नेम मुगल्स डिराइव फ्रॉम मंगोल, दो टुडे द टर्म इवोक द grandeur of an empire. It was not the name of the rulers of the dynasty, chose for not the name of their rulers for themselves. They referred to themselves as a Timurids. Okay, and as descendant of the Turkish ruler Timur. ओके. तुर्की सुल्तान तैमूर के नाम पे तैमूरी राजवंश की स्थापना की मुगलों ने बाबर. पहले इसे बताइए, थोड़ा सा कंफ्यूज, पहले इसे क्लियर कर लेते हैं. अब मंगोल्स जो थे, मैंने आपसे कहा था बाबर के ब्लड में मदर की ओर से और फादर की ओर से. ओके, फादर वो नीचे हो गया और ऊपर कर देते हैं. फिफ्थ जनरेशन. एंड मदर फोर्टीन्थ जनरेशन. ओके. बाबर फादर कौन थे, मदर कौन थी? मदर कुतुलुग निगार खान. कुतुलुग निगार मदर, और फादर थे उमर शेख मिर्जा. ओके. तो माता मंगोलों की 14वीं जनरेशन थी और फादर जो थे वो तैमूर के 5वें जनरेशन थे. मुगल हमेशा अपने को कहते हैं कि हम तैमूर हैं, हम तिमुरिद्स हैं, तैमूर के वंशज से. हमारा शासक तुर्की, हमारा रहा शासन तुर्किस्तान की था, तुर्की का शासक हमारा. तो अपने को हमेशा वो तुर्किस्ट जोड़ते हैं. वही कहता है इट वॉज नॉट द नेम ऑफ द रूलर्स. मुगल्स इज नॉट द नेम ऑफ द रूलर्स ऑफ द डायनेस्टीज, choice of the themselves, they refer themselves Timurids as the descendant of their Turkish ruler Timur on the
The paternal side, Babur, the first Mughal ruler, was related to Gangezi Khan. From the mother's side, he spoke Turkish, referred the relatively to the Mongols as the barbaric horse. कहता है कि बाबर जो मुगल का फाउंडर्स था, मुगल डायनेस्टीज के बाबर कौन थे? मुगल डायनेस्टी के क्या थे? बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की माता मंगोल थे। ओके, ये मंगोल थे। मंगोलों की 14th जनरेशन थी। किसकी? कुतुब निगार, जो बाबर की माँ थी। बाबर की फादर उमर शेख मिर्जा तैमूरी से, तैमूर के वंशज थे, 5th जनरेशन थे तैमूर के। इसीलिए मुगल अपने आप को हमेशा कहते हैं कि हम तैमूरीज हैं, हम तैमूर के वंश हैं। ओके, कहता है ड्यूरिंग द 16th century the European used during the 16th century European used the term Mughal to describe the Indian rulers of this branch of the family. कब? 16th century में। कौन? यूरोपीय हिस्टोरियन। यूज दिस टर्म मुगल टू इंडिकेट द रूलर्स who ruled on India during particular time period. ओके, एक निश्चित समय क्षेत्र पे भारत में शासन करने वाले राजाओं के नाम को, रूलर्स को बताने के लिए ये राजा जो थे उन लोगों को यूरोपीय इतिहासकारों ने मुगल के नाम से जाना। द एम्पायर was carved out of number of regional states of India through conquest and the political alliance between the Mughals and the local chieftains. The founder of the empire, Jahiruddin Babur, was driven from his Central Asian homeland, Fargana, by the warring Uzbeks. He first established himself at Kabul and then in 1526 pushed further into the Indian subcontinent and searched for the territories and resources of the satisfy the need of number of his clan. Babur, who was the founder of the Mughal dynasty, first established their rule in Kabul. Fargana, that was the very little रियासत या छोटा सा इलाका कह लीजिए, फरगना का सूबेदार बना बाबर। और फिर फरगना के बाद उसने काबुल पे विजय की। फरगना उसके हाथ से निकल गया, बाद में काबुल भी उसके हाथ से निकला। और फिर उसके पास जब कुछ नहीं रहा तो फाइनली उसने डिसाइड किया कि आगे बढ़ के युद्ध करने को। कुछ समय के पश्चात उसने इन क्षेत्रों पे पूरी तरीके से अधिकार स्थापित तो नहीं कर पाए, लेकिन एक सशक्त रूलर के रूप में अपने को स्टेब्लिश किया और उसने वेस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ मूव किया, सॉरी हिंदुस्तान की तरफ मूव किया। वो हिंदुस्तान की तरफ चला। पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत में उसने सल्तनत के लास्ट सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया और फिर भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हुई। बाबर 1526 1526 बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट पानीपत के मैदान में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया, सुल्तान के अंतिम शासक, सल्तनत के अंतिम सुल्तान को, और आगरा में उसने अपने को स्थापित किया और यहीं पे मुगल राजवंश की स्थापना हुई। यहाँ पे आने के पहले बाबर
अफगानिस्तान की एक छोटी सी रियासत फरगना का सूबेदार बना। उसके फादर उमर शेख मिर्जा फरगना रियासत के एक छोटे से सूबेदार थे। पिता की मृत्यु के बाद बाबर को भी फरगना का आधिपत्य मिला और बाबर फरगना को अपने नियंत्रण में। सो इट इज वेरी क्लियर, बाबर जो एक आक्रांता के रूप में, मिरर्स के रूप में इंडिया आया, उसने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 1526 में, और भारत में एक ऐसा साम्राज्य स्थापित हुआ जिसने भारतीय इतिहास में अपना नाम एक महत्वपूर्ण जगह पर स्थापित किया। हिज सक्सेसर नासिरुद्दीन हुमायूं expanded the frontiers of the empire, but last to all, Afghan's leader Sher Shah Suri. Okay, let me explain the name of the Mongol rulers. Okay, sorry, Mughal rulers. Mughal rulers के नाम मैं यहाँ पे एक बार आपके सामने बता देता हूँ। उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री आपको एक्सप्लेन करें, थोड़ी हिस्ट्री, क्योंकि हमें इनके बारे में आपके सिलेबस में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट किया, तो हम लोग भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट करें। पहला नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। सेकेंड है नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। थर्ड नेम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। फोर्थ नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। Okay, then after Sihabuddin Muhammad, Sihabuddin Muhammad Shahjahan, and then after 6 मुइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। तो ये औरंगजेब, ये लिस्ट है। एक नाम लास्ट मैंने छोड़ा है औरंगजेब का। तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, नूरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर एंड द सियाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां। तो ये शासकों ने, और औरंगजेब, मुगल शासकों में औरंगजेब सबसे महत्वपूर्ण, अकबर और औरंगजेब दो सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले शासक इन लोगों ने मुगल साम्राज्य की एक्सपेंशन में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया।
मुगल बाउंड्री, मुगल एम्पायर के एक्सपेंशन में इनका योगदान काफ़ी अविस्मरणीय है। हम इन दोनों पॉइंट्स को मुगल रूलर्स की हिस्ट्री में कल 60 में देखेंगे संक्षेप में, और एक बार इसको इस शासकों के बारे में थोड़ी बहुत हिस्ट्री समझ के फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय।